दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 में। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। सो एंजॉय द वीडियो एंड increase your Chapter 9 Rational Number Exercise 9.1. This is the topic of class 7 and here is the question number 7 of this chapter, that is exercise 9.1. So here that question number 7 is rewrite the following rational numbers in the simplest form. So how can you write the given rational number into the simplest form? So here is the first part of this question is minus 8 by 6. So how can you write this question into the simplest form? You can write easily. What is the step for write the simplest form? First of all, we will find the HCF of numerator and denominator. Here the HCF of numerator, that is 8 and 6, is how much? 2 only. दोनों का HCF कितना होगा? 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, दैट इज वी विल राइट द सेम रेशनल नंबर -8 upon 6, and this rational number is divided by 2. 2 is the HCF, so we will divide this rational number by 2, numerator and denominator separately. So what you will get? We will get is 2. Here you can see that 2 4 ja 8, okay, and 2 4 ja 8, so you will get in the numerator 4 and 2 3 ja 6, and here is the negative sign, so you mark the negative sign. You will get -4 by 3, and now this is not divided by any other number, so this is the final answer, means this is the simplest form of this rational number. Okay dear, so this is the process to write the simplest form. Now moving for next part number 3rd, and part number 3rd is given here -44. So here let us the part number 3rd. Third is given that -44 and divide by 72. So how can you write the simplest form of this? So dear, we will find first of all HCF of this number. So we will write just like that, HCF of 44 and 72 equal to how much? It is dear 4. हम क्या करते हैं, CF फाइंड करने के लिए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऐसा नंबर है जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 इसका HCF होगा, या 4 दोनों ही नंबर को डिवाइड करेगा, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। सो डियर, इट इज़ रिटन एज -44 and divide by 4 and again 72 divide by 4. So it is dear, when you divide this by 4, so 4 1 ja 4, you can see it, that is 4 1 ja 4, okay, and here 4 1 ja 4 and 4 1 ja 4. Here is 72 when you divide by 4, then 4 1 ja 4, remaining is 3, and this is 32, and 4 8 ja 32. So you will write just like that, -11 by 18. And now 11 and 18 not cancelled by any other table, so this is the simplest form, and dear, this is the answer of this question. Okay, and if you have problem to
cancelled out or divide this, then you can take the rough work. As you can see just now that you can write this, that is 44 and divide by 4, so you will get 4 1 ja 4 and remaining is nothing. So this 4 is just come down and now 4 1 ja 4, so now remaining nothing. So this is 11, so you can write here 11. After that, for the next part, here 72 you cannot divide, so you will write just like that 72 divide by 4 and you will get it is how much, 4 1 ja 4, so remaining is minus 3 only. And now take this 2, so this is 4 8 ja 32. Now remaining is what, nothing. So dear, you can write here just like that 11 by 18. So this is the answer of this question. Now moving for next question, here is question number 8, and the question number 8 is given that fill in the boxes with the correct symbol out of greater, less and equal. So this symbol we will fill in the given boxes. So here is the part number first is given here just like that, minus, this is part number first, minus 5 by 7, and here is the box, and after that 2 by 3. So dear, what you will put here, sign. So this is very easy process to mark here this symbol. What to do? Yes, you can write this question again, that is minus 5 by 7, and here is you will mark 2 by 3, and now you cross multiply both as you see just like that, numerator to denominator and denominator to numerator, you will get it just, you can see 5 3s are 15 and here is the negative sign, so you will write here 15 and 7 2 ja 32 or 7 2 ja 14. So you will write here just like that, how much, this is minus 15 and this is 7 2 ja 14. So now dear, you know very well that positive numbers always greater than the negative number. तो ये आपका 14 जो है ना, ये बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, और ये 15 है, ये माइनस साइन लगा है, इस वजह से ये नंबर छोटा होगा, स्मॉलर होगा. तो यू विल पुट हियर दिस साइन जस्ट लाइक दैट, 14 is greater, means minus 15 is less than 14. So dear, you will mark here this sign just like that, less than. ओके और अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो भी आप यहाँ पे देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे क्या, कि ये आपका नेगेटिव नंबर है माइनस 5 बाई 7, दिस इज नेगेटिव. तो नेगेटिव नंबर ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर, तो ये आपका लेस नंबर होगा. और पॉजिटिव नंबर है जो 2/3, दिस इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होते हैं, तो बिना सॉल्व किए ही आप इसका आंसर दे सकते थे. सो डियर, दिस इज ऑलवेज लेस देन, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन द ग्रेटर पॉजिटिव नंबर. तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, इसके बाद चलते हैं, मूव करते हैं सेकंड पार्ट, एक इसका कोई और पार्ट ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज द पार्ट नंबर थर्ड ले लेते हैं. तो पार्ट नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है डियर, दिस इज पार्ट नंबर थर्ड एंड इट इज माइनस 7 बाई 8 एंड बॉक्स एंड दिस इज 14 बाई 16 माइनस 16. सो यू विल अगेन अप्लाई सेम रूल, आपको फिर से वही करना है. आप माइनस 7 बाई 8 लिखेंगे और यहाँ पे 14 बाई 16 लिखेंगे, नेगेटिव 16 है, एंड यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई हेयर. सो यू विल गेट जस्ट लाइक दैट. what is that is you will get here 7 and 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 and 7 how much dear, you can write 16 7 ja how much 112. So you will write 112 and with the negative sign.
After that 14 8 ja, how much? 14 8 ja, once again 112. Okay dear, so एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव टू मल्टीप्लाई नेगेटिव टू नेगेटिव यू विल गेट पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आपका कौन सा साइन हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। और ये भी 112, ये भी 112, बोथ आर पॉजिटिव, तो इट इज जस्ट इक्वल। तो आपका ये कौन सा साइन आ गया? यहाँ पे इक्वल आ गया। तो आप अगर ये इक्वल आ गया तो यहाँ पे आप पुट करोगे इक्वल। Okay dear, so this is just equal to each other. Now dear, we take another part. Let us, this is part number 4. Part number 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है? 0 and then box, after that -7/6। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ 0/1 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिखोगे -7/6 एंड यू विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर जस्ट लाइक दैट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बताइए। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई 0 to 6, देन यू विल गेट रिजल्ट 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होता है वही सेम रिजल्ट मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा -7। और हमने आपको बताया -7 इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। 0 आपका पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन नंबर लाइन पे 0 पहले मिलेगा, 7 बाद में मिलेगा। तो ये नंबर हमेशा 0 बड़ा होगा और -7 छोटा होगा, इसलिए आप यहाँ पे साइन पुट करेंगे दिस वन। और आप इसे बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 0 आपका कैसा है? पॉजिटिव है। 0 पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं। तो आप यहाँ पे ये साइन बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे। इसी तरह से अदर पार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस डियर, इट इज़ 9 नंबर क्वेश्चन। विच इज ग्रेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बड़ा कौन है? तो सेम प्रोसेस आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे आप कैसे करना है? फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर, दैट इज 2/3, 5/2। तो आप क्या करोगे? इसको भी इसी मेथड से करना है आपको। तो आप सबसे पहले लिखोगे 2/3 और यहाँ पे लिखोगे 5/2 एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाई एज क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज नोमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू नोमरेटर। सो यू विल गेट हियर 2 2 जा 4 and 3 5 जा 15. So you will get here result just like that, 4 and 15. Now you can observe which is greater, which is smaller. आप देखिए 15 is greater, तो आपका सिंबल यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ ये सिंबल पुट करेंगे तो आप देखिए सेकंड वाला नंबर जो ये रेशनल नंबर है ये बड़ा होगा, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट जस्ट लाइक दैट 2/3 इज लेस देन 5/2। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया था? विच इज ग्रेटर, तो आप फाइनली लिखोगे 5/2 इज ग्रेटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई और भी रेशनल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी जिसमें मान लीजिए मैंने आपका थर्ड पार्ट ले लिया या फिर थर्ड पार्ट ही लेते हैं, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट इज़ गिवन दैट थर्ड पार्ट -3/4, 2/-3, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप सेम ही प्रोसेस अप्लाई करोगे। आप सबसे पहले ये जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं इन्हें आप इस तरह से लिखोगे। ये इट इज हाउ मच डियर? यस ऑफ कोर्स दिस इज 3/4
और यहाँ पे लिखोगे -3 है ये, और ये आपका है 2y-3 एंड यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 = 9 एंड माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा 9 ही तो होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 2 = 8, यहाँ पे देखिएगा तो 4 2 = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ऑफकोर्स, तो 4 2 = ये क्या हो गया 8। तो आप ये दोनों रिजल्ट यहाँ फाइनली लिख दीजिए, तो क्या मिलने वाला है, दिस इम्प्लाइज दैट 9 and 8 एंड विच इज ग्रेटर हियर, 9 इज ग्रेटर देन 8। तो फाइनली आप क्या लिखोगे -3/4 इज ग्रेटर देन, आपका फर्स्ट नंबर बड़ा है ना तो फर्स्ट रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा 2/-3, लेकिन आपको बताना क्या है विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, तो आप फाइनली लिखोगे यहाँ पे क्या लिखना है -3/4 इज ग्रेटर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कोई भी पार्ट हो इसका जिसमें आपको स्मॉलर और ग्रेटर बताना है, आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ वो भी वैसा ही है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बताओगे, कैसे ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, आइए चलिए इसके विषय में बात करते हैं। सो डियर राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हम फर्स्ट पार्ट आपका लिखते हैं और इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करना है। तो चलिए देखते हैं। हियर इज गिवन दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज -3/5 and second one is -2/5 and third one is -1/5। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हो गए। अब इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन बताने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डिनोमिनेटर इसका ऑब्जर्व कीजिए। हियर इज डिनोमिनेटर इन ऑल द रेशनल नंबर इज 5, सेम ही है। तो अगर यहाँ पे सेम नंबर्स दिए हैं तो आप केवल न्यूमरेटर देख के ही बता सकते हो। न्यूमरेटर में आप देखोगे कि -1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ -2 लिखा है, यहाँ -3 लिखा। -3 सबसे छोटा नंबर होता है क्योंकि ये माइनस लगा है। इसके बाद -2 होगा, उसके बाद नंबर लाइन अगर बनाएंगे तो नंबर लाइन में आपको क्या मिलता है आप बताओगे। नंबर लाइन आपकी इस तरह से होती है, ये दिस इज द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर 0 है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका -1 लेफ्ट साइड में आएगा और इधर में -2 आएगा और इधर में -3 आएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट की डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपके नंबर असेंडिंग मीन्स छोटे होते जाएंगे, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमेशा नंबर इंक्रीज होते हैं, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर डिक्रीज होते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड में आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे सभी नंबर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ये -3 जो आपका नंबर है ये सबसे छोटा होगा, -2 उससे बड़ा होगा, -1 सबसे बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखोगे बेटा, यू विल राइट, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा -3/5, उसके बाद क्या आएगा -2/5 और उसके बाद क्या आएगा -1/5। तो आप यहाँ पे सिंबल भी पुट कर दीजिए। तो देखिए सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे लेस एंड लेस। तो ये आपका आंसर हो गया, यही असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये तो केस बहुत आसान था क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर्स इसके सेम थे। अब अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर्स सेम ना दिए हों
उस केस में आप कैसे बताओगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट ले लिया, थर्ड पार्ट भी आसान ही है। थर्ड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट पहले देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, -1/3 और फिर है -2/9 और अगला नंबर है -4/3। ठीक है, तो ये आपको नंबर दिए हुए हैं, इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर्स जो दिए हुए हैं, फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 9 है, थर्ड में 3 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे, या फिर दूसरे प्रोसेस से डिनोमिनेटर सेम बनाओगे तो आप यहाँ आसानी से बना सकते हो। देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 9 है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 9 हो जाएगा। लेकिन आप सिंगल नंबर में तो कर नहीं सकते हो कि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा नहीं। आपको नोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, -1/3 मीन्स आप इसे ऐसे लिखोगे, हियर -1/3 दिस इज मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि हमें डिनोमिनेटर 9 मिल जाए। तो ये हो जाएगा -3/9। और सेकंड जो है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड तो ऑलरेडी ही जिसमें डिनोमिनेटर 9 है तो उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपका 2/9 -2/9 ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। थर्ड पार्ट आप देखिएगा, तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे जो दिया है वो आपका रेशनल नंबर क्या है, दैट इज़ -4/3। तो -4/3 आपका जो रेशनल नंबर है, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, 3 से ही करेंगे तभी तो 9 मिलेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, -12/9। अब आप देख सकते हो हियर 9 इन द फर्स्ट रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज 9, इन द सेकंड रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज 9, इन द थर्ड रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज 9। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आप इसे बता नहीं सकते हो, बता नहीं पाओगे कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अब आप इस रेशनल नंबर को पहले सीरियल से लिख लिए, देयरफॉर we get rational number just like that, -3/9 and -2/9 and -12/9। तो अब यहाँ कंपैरिजन आप कराएंगे कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है। तो ये -12 है, सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा -12/9 और फिर इसके बाद -3/9 और उसके बाद आ जाएगा -2/9। और यहाँ पे असेंडिंग में लिखना है तो यहाँ आप साइन पुट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे साइन आ जाएंगे, दिस इज लेस, ओके, मीन्स सबसे बड़ा ये नंबर होगा। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे और पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ दिया है, ये वो थर्ड पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर थर्ड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। इट इज गिवन दैट -3/7 and second one is -3/2 and the third one is -3/4। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको मिल गई कि यहाँ सभी न्यूमरेटर सेम ही हैं। अगर ऐसा मिलता है केस जिसमें न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप इसे डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो। ठीक है,
तो डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे? जो डिनोमिनेटर आपका सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वही रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा दिया है वो रेशनल नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप भी जनरली जानते हो, मान लीजिए आपके पास ये 3 एप्पल्स हैं और 3 एप्पल्स हैं तो आपको 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो 7 लोगों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट 3 एप्पल्स करोगे तो बताओ कितना कितना दोगे? जितना भी दोगे इक्वली देना है। अब मान लो आपके पास 3 एप्पल्स है, केवल 2 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिंपल सी बात है 1.5 मीन्स 1.5 आप दोनों को दे दोगे। तो बताओ इन दोनों को एप्पल ज़्यादा मिलेगा या इन 7 लोगों को ज़्यादा मिलेगा? 2 लोगों को ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये रेशनल नंबर सबसे बड़ा हो गया कि नहीं? तो यहीं से आप एवरेज निकालोगे। यहाँ पे ये सेम करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे सिंस numerators are same, therefore अगर सेम है therefore रेशनल नंबर is greater whose denominator is smaller। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर वो ग्रेटर हो जाएगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर सबसे छोटा रेशनल नंबर आपका यहाँ पे होगा सबसे बड़ा रेशनल नंबर जिसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हो, तो वो हो जाएगा -3/7। उसके बाद 7 के बाद फिर किसका नंबर आएगा? डिनोमिनेटर यहाँ 7 हो गया। इसके बाद फिर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आएगा ये रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर 4 दिया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? -3/4। और फिर लास्ट में आपका ये डिनोमिनेटर आएगा जिसका ये रेशनल नंबर आएगा जिसका डिनोमिनेटर 2 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे -3/2। अब आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में चूंकि लिखना था इसलिए आप यहाँ पे साइन पुट कर देंगे, दिस इज लेस। ओके, मीन्स यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर लेस हो जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। सो डियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक दैट ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर। जो यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन थे वो तीनों तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अगर तीनों तरह के क्वेश्चन में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके डियर, थैंक यू। So dear